I am Dr. W. Ganole from Kamala Nehru Mahavidyalaya, Nagpur. Today we are going to discuss what is alkane and a nomenclature of alkanes. As we know, there are two systems, common system of nomenclature and the IUPAC nomenclature of organic compounds. As we know, there are basic 10 alkanes are there, and in case of methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, decane, and these are alkanes have end is a ANE. ANE means carbon-carbon single bond. So there are two types of hydrocarbons, that is saturated and unsaturated. So saturated hydrocarbon is the alkane, and in case of alkane, there are straight chain of there are two types of alkanes, that is the compounds, one straight chain compound and the branch chain compound. So there are two types of alkanes, that is the straight chain and the branch chain. So how to write the name of this straight chain compound? There is no problem, common method we have to use, but in case of that is branch chain alkanes, we have to use the IUPAC system, and there are important 4 rules to write the IUPAC name of the organic compound. So here today we are going to discuss how to write the name of the organic compound by using the IUPAC system of nomenclature. With that part we are going to discuss in today's presentation. So today we are going to discuss the alkane and cycloalkane. But today in the today's presentation we are discussing what is alkane and the nomenclature of alkanes. And this is the part 1. And in this part we are going to discuss the introduction. What is alkane? What are the types of alkane? IUPAC nomenclature of branch and unbranched alkanes. So as we know, there are two types of hydrocarbon. And what is hydrocarbon? Hydrocarbon is a compound which contain carbon-carbon single bonds, are called the saturated hydrocarbon. And now there are two types of hydrocarbon, saturated and unsaturated. The saturated hydrocarbon are those which contain carbon-carbon single bond, and unsaturated compound contain carbon-carbon double bond or triple bond. So systematic IUPAC names of these compounds is the IUPAC name of this compound is alkane. So the name of such compound end with the ANE, and alkanes name end with the ANE, and it also carry the prefix indicating the number of carbon atoms present in the compound. The name of first straight chain alkane are there. So now here general molecular formula of alkane is written as CnH2n+2. So general formula of the alkane is a CnH2n+2, where C is the number of carbon atoms, and here number of hydrogens are more as compared to carbon in the atoms in the compound, and series of compounds which differ by the CH2 unit is known as the homologous series. So what is homologous series? Now here the different types of alkane, as we know, methane, ethane, propane, in which all these alkane, 10 alkanes are there. In this 10 alkane, they differ by the CH2 unit. So CH2 unit we have to add one by one, and this series is known as the, so alkane is the homologous series. So in this table the name of the first 10 alkanes are shown, are given here. So name of the 10 alkanes are methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. And number of carbon atoms are shown here: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And their molecular formula is methane have CH4, ethane have C2H6, C3H8, C4. So one carbon atom increases by one number, and here it is by the it is increases in this way. So here number of hydrogen atom is shown here. So these are the molecular formula and the name of the alkanes, first 10 alkane, and the name of carbon atom. So ये first 10 alkanes are here shown in this table. Now there are two types of alkane, as we know. As we know what is hydrocarbon, which compound which contain carbon and hydrogen. Now there are two types of alkanes. One is a straight chain alkane, and the second is a branch chain alkane. And depending upon the structure of carbon chain, alkane are two types. So depending upon the structure of carbon chain, whether the carbon chain in a linear or straight, in that case there are two types. So depending upon that, straight chain alkane and the branch chain alkanes are there. So what is now the straight chain alkane? So in this case
Here the example is given of N-butane. So 4 carbons are there and they are present one by one, and each carbon attached to 2 carbon. So in this way we obtain here butane, and this is the N-hexane. So 6 carbons are there, and these are the examples of straight chain alkane. So these alkanes contain straight chain of carbon atom, and in other words also we can say that alkane in which no carbon atom is linked to more than 2 other carbon atoms. Such type of compound are known as straight chain compound. So each carbon here, one of the carbon attached to other 2 carbon. So these are the straight chain alkanes. So straight chain alkane are the compound in which the straight chain of carbon atoms are present in the molecule, or alkane in which no carbon atom is linked to more than 2 other carbon. So in case of straight chain, one carbon can attach to other 2 carbon atoms. So these are the straight chain alkane, and common names of the straight chain alkane are the same as their IUPAC names, except prefix N is used in the common names given within the bracket. So in this way N we have to write here, N-hexane, N-butane, like that. So there are 2 types of alkane. One is a straight chain alkane and second is a branch chain alkane. So here second is branch chain alkane, and these are the alkane, or in these alkane all the carbon atoms are not present in a linear sequence. So there is no sequence, and in other words we can also say that alkane in which at least one carbon atom is linked to other 3 or 4 other carbon atoms. In this case एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन को या 4 कार्बन को अटैच हो सकता है. ऐसे इसमें जैसा एग्जांपल दिए हैं सारे, these are the examples here is shown, and such type of alkanes are known as the branch chain alkane. And examples are here. These are the 1, 2, 3, but now 1, 2, 3 carbon, and second carbon have this CH3 group. So this is the balance. So this carbon attached to 1, 2, 3. So this carbon attached to other 3 carbon. So it is a isobutane, and IUPAC name is the 2-methyl propane. 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और 2 कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मिथिल, तो 2-methyl propane. ये ब्यूटेन है 4 कार्बन से, और कार्बन नंबर 2 पर क्या है, मिथिल, तो इसका नंबर 1, 2, 3, 4. तो 2 पे क्या है, 2 पे मिथिल है, CH3 है मिथिल, तो 2-methyl 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन. इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन. ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, और कार्बन नंबर 2 पर क्या है, मिथिल, तो 2-methyl पेंटेन. ये 5 है, पहले सब्स्टिट्यूट लिखना है, मिथिल 2-methyl, उसके बाद में 5 है इसलिए पेंटेन, 2-methyl पेंटेन आइसोहेक्सेन. दिस इज अनदर एग्जांपल नियोपेंटेन. तो इसमें 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये अगर ये चेन पर नंबर देते हैं 1, 2, 3, तो ये है 2 पे, कार्बन नंबर 2 पर क्या है, मिथिल और मिथिल, तो 2 मिथिल है, तो इसको लिखते हैं 2 डाइमिथिल. 2 है इसलिए डाइमिथिल, 2 डाइमिथिल, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन. इसका नाम है, इसमें भी 1, 2, 3, 4, तो 2 डाइमिथिल ब्यूटेन और नियोहेक्सेन. तो इस तरह से एग्जांपल है. ये ब्रांच चेन है. ब्रांच चेन में क्या है कि एक कार्बन अदर 3 कार्बन को अटैच होना चाहिए, या 3 या 4 कार्बन को अटैच है तो ब्रांच चेन. और स्ट्रेट चेन में ऑल कार्बन एटम्स अटैच टू अदर 2 कार्बन and forming the long chain. So there are 2 types of alkane, straight chain and the branch chain alkane. So important part here is the IUPAC nomenclature of the branch alkane and the unbranched alkane. As we know, organic chemistry deals with the millions of compounds are there. In case of organic compounds, there are millions of organic compounds, and to write the name of this compound or to identify this compound, it is essential to frame certain rules. To know the identity or to identify the compound, there are systematic certain rules are there, and International Union of Pure and Applied Chemistry, that is in short उसको बोलते हैं IUPAC. इसका IUPAC का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. IUPAC is the one organization which is in the US, United States of America, has developed a system of naming the organic compound, and this system is known as IUPAC nomenclature. तो ये IUPAC nomenclature है. ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो हाइड्रोकार्बन which contain only one carbon single bond, or hydrocarbon which contain carbon single bond are known as the saturated hydrocarbon. And the systematic IUPAC name for this compound is the alkane. And for systematic study of their nomenclature, hydrocarbons are 2 types depending upon the structure.
unbranched compound and branched compound. One is unbranched. So there are two types of hydrocarbons, unbranched compound and branched compound. Unbranched मतलब straight chain and branch मतलब उसमें जिसमें कुछ ब्रांचेस है. तो ऐसे दो टाइप के अल्केन्स है और उनका नोमेनक्लेचर अपने को आज देखना है, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का. तो पहले देखते हैं अनब्रांच कंपाउंड. अनब्रांच कंपाउंड का नाम, तो कंपाउंड which is made up of straight chain of carbon atom is the unbranched compound. The name of such compound with ANE is the ending words are there and carry a prefix indicating the number of carbon atom present. The name of the first 10 straight chain alkane are given in the table that we are going to see. What are the 10 first alkanes and जनरल फार्मूला ऑफ दिस इज द अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है CnH2n+2 and this indicate that number of hydrogen atom in the particular compound is 2 more than double the number of carbon atom. For example, propane molecule is shown here. This is the molecular formula of propane, that is C3H8. C3H8. So here structure formula is CH3 CH2 CH3. So CH3 CH2 CH3 336 or 2H C3H8 and graphical formula we can show in this way. CH3, so CHH3, CH2 CH3. In this way there is a single bond between the two carbon atoms and this is the molecular formula of propane, structural formula and graphical formula. And this is the table which shows the straight chain unbranched compound. So first is one by one CH2 one more, here is one CH2, here is no CH2, here are the 2, 3 CH2, 4. So in this way the homologous series of alkane is there. They differ by the CH2 unit. So methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane. These are the names of first 10 alkanes and these are known as the unbranched compound. So these are the organic compounds of alkane and these are the 10 unbranched compounds. So name of the alkanes. And now how to write the name of the branch chain alkane. So what is branch chain? As we know, branch chain alkanes जिस कंपाउंड में एक कार्बन अदर 3 कार्बन को या 4 कार्बन को अटैच है उसको बोलते हैं ब्रांच चेन अल्केन. दिस कंपाउंड कंटेन चेन ऑफ कार्बन एटम विद ब्रांचिंग. कार्बन एटम की चेन होती है, उसमें ब्रांचिंग भी होता है एट वन और मोर कार्बन एटम. एग्जांपल इसमें दिया है, जैसा ये कंपाउंड है, कितने कार्बन इसमें 1 2 3 4. तो ये CH3 CH2 CH2 CH3. तो इसमें से एक हाइड्रोजन इसको निकालेंगे, उसकी जगह CH3 लेते हैं तो रिप्लेस हाइड्रोजन एट कार्बन नंबर 2 बाय द CH3. तो इसमें अगर ये जो नंबर 1 2 3 4 तो कार्बन नंबर 2 का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, उसके जगह CH3 ऐड किया. देखो यहाँ पे एक कार्बन नंबर 2 पे ये CH3 ऐड किया है CH3. तो ये हो गया ब्रांच. ये तो स्ट्रेट चेन हो गया. ये कार्बन नंबर 2 पे आ गया ब्रांच. तो दिस कार्बन अटैच टू 1 2 3 कार्बन या 4 कार्बन को अटैच है तो उसको बोलते हैं दिस इज नोन एज द ब्रांच चेन कंपाउंड. सम अदर एग्जांपल्स आल्सो शोन हियर. इसमें देखो ये स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और इस कार्बन पे CH3 है, इस कार्बन पे CH3 है. इसको नंबर देते हैं तो 1 2 3 4 5. तो ये ब्रांच है यहाँ पे इस टाइप से. ये अनदर कंपाउंड एग्जांपल इज देयर and this is the straight chain, but now this carbon attached to this CH3, this carbon attached to methyl and this attached to this ethyl group. So this is the branch chain alkanes. तो ब्रांच चेन अल्केन में एक कार्बन अदर 3 कार्बन को अटैच होता है या 4 कार्बन को अटैच होता है. इस टाइप से ये ब्रांच चेन के एग्जांपल्स है. तो दिस कंपाउंड कंटेन चेन ऑफ कार्बन एटम विद ब्रांचिंग एट वन और मोर कार्बन एटम. And these are the examples of branch chain alkane. So there are two types of alkane, straight chain and the branch chain alkane. Now here अभी अपने को पता है कि branch chain alkane कौन सा है and उसके एग्जाम्पल भी देखा है. तो how to write the name of the branch chain alkane. So what is the system? IUPAC nomenclature is the method or system. So what are the different rules? Rules for IUPAC nomenclature of branch chain alkane. So to write the IUPAC name of the organic compound, there are 4 important rules. तो ये आपको ध्यान में रखने का है. 4 important rules है and if you know these 4 rules, we can write the name of the any organic compound. So in case of alkane, it is given. In case of branch chain alkane, how to write? Same procedure we have to follow for other also.
for unsaturated compound and also for the compound which contain functional group, the procedure is same. So these are the rules for IUPAC nomenclature of the branch chain alkane. तो ब्रांच चेन अल्केन के नाम लिखना है तो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है. तो रूल नंबर 1 देखो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम. रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल. ये एक लाइन ध्यान में रखने का है कि सिलेक्ट दी, ये वाला लाइन ध्यान में रखने का है. तो पहला पॉइंट है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल. तो जो भी कंपाउंड दिया होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की कितनी है, 5 कार्बन की है, 4 कार्बन की, वो सिलेक्ट करना है. एंड वही उसको सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्ट करना है. पहला रूल क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल एंड द सिलेक्टेड चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम. जो सिलेक्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आना चाहिए. तो अगर अपन जाते हैं तो 4 या 5, तो 5 वाला लेना है लॉन्गेस्ट चेन. इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ए पेरेंट चेन. उसको पेरेंट चेन जो अपन सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, इट इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट चेन and it gives the name of the parent hydrocarbon. Carbon atom which are not included in the parent chain, जो एटम है या ग्रुप है वो पेरेंट चेन में अटैच नहीं, मतलब पेरेंट चेन में नहीं है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस. दे आर आल्सो रिगार्डेड एज अ प्रीफिक्स और द सब्स्टिट्यूएंट. दे आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूएंट. एंड इट इज आल्सो नोटेड दैट लॉन्गेस्ट चेन मे और मे नॉट बी स्ट्रेट. जो अपन लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे वो मतलब स्ट्रेट चेन ही होना चाहिए ऐसा नहीं है. वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और जिगजैग भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है. तो कैसा भी जाना है लेकिन लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, मैक्सिमम उसमें कार्बन आना चाहिए. बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यू होना चाहिए. सीधा ही जाना चाहिए स्ट्रेट ऐसा नहीं है, कंटिन्यू जाना है, कंटिन्यूअस होना चाहिए चेन. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ द हियर, वन एग्जाम्पल इज गिवन टू एक्सप्लेन दी रूल नंबर 1. तो इसमें देखो दोनों कंपाउंड एक जैसे ही है. ये देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 3 अटैच है, 1 2 5 और 3, दोनों एग्जाम्पल सेम ही है. लेकिन अभी यहाँ पे देखो डैश डैश लाइन एक इसमें किया है. देखो यहाँ से डैश डैश 1 2 3, उसके बाद में ऐसे चेन सिलेक्ट किया है, लॉन्ग चेन सिलेक्ट किया है. इसमें है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है पहले इसमें. और सेकंड जो सिलेक्ट किया है देखो स्ट्रेट चेन डैश डैश दिखा है, इसमें कार्बन आते हैं 1 2 3 4 5. तो ये 5 है, इसमें 6 है. तो व्हाट इज द पेरेंट चेन कौन सी है जिसमें कार्बन 6 है. तो ये वाला सिलेक्ट करना है. देयरफॉर दिस लॉन्ग चेन सिलेक्शन, ये जो आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट किया है ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है. ये 5 नहीं आएंगे, इसमें 6 आएंगे. तो इसी टाइप से ऐसा पहले ही बताया कि लॉन्ग चेन जो सिलेक्ट करेंगे वो स्ट्रेट चेन ही होना चाहिए ऐसा नहीं है. कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट है या फिर स्टेप से भी जा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो ये एक एग्जांपल दिया है रूल नंबर 1 का कि पहला रूल क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल. तो ये वाला करेक्ट है और ऐसा कोई सिलेक्ट करता है तो ये रॉन्ग है. इस टाइप से सिलेक्शन करना है. तो ये पहला रूल है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल. वो फिर कैसा भी हो, स्ट्रेट चेन हो या फिर कैसा भी, लेकिन कंटिन्यूअस कार्बन चेन होना चाहिए. तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. तो ये रूल नंबर 1 हो गया. नंबर द कार्बन एटम. अभी अपन ने सिलेक्ट करने के बाद उसको नंबर देना है 1 2 3 4 5. जितने कार्बन होंगे उसको नंबर देना है. जो अपन लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे वो लॉन्ग चेन को अपन सिलेक्ट करने के बाद उसको नंबर देना है. तो नंबरिंग कौन से साइड से देंगे, लेफ्ट साइड से देंगे कि राइट साइड से देंगे. तो ये रूल नंबर 2 है. उसके लिए नंबर कैसे देना है, ये रूल नंबर 2 है. नंबर द कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन, नंबर द कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन एच, उसको नंबर देना है 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड which give the smaller number to the carbon atom carrying the prefix. मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिस साइड से कम कार्बन पे आएगा वहां से नंबरिंग करना है. एग्जांपल भी देखेंगे अपन. फॉर एग्जांपल इसमें दिया इफ x रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट देन करेक्ट नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन इज गिवन इन द स्ट्रक्चर 1. ये देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 इज द करेक्ट वे टू गिव द नंबर. तो ये देखो ये यहाँ से नंबरिंग करना है. ये x है यहाँ पे है, इस कार्बन पर है, तो नंबरिंग इधर से किया है 1 2 3 4 5.
ये सब्स्टिट्यूएंट है एक्स, ये कौन से कार्बन पे 2, और ये जो है सेकंड स्ट्रक्चर, ये और ये सेम ही फॉर्मूला है, इधर से नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5, तो इधर से नंबरिंग करने के बाद ये जो एक सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर 4 पे है, यहाँ पे इधर से करने के बाद ये कहाँ पे आता है, कार्बन नंबर 2 पे आता है। तो विच इज करेक्ट, जहाँ जिस साइड से वो कम का नंबर पे आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर पे आएगा, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये 4 पे आता है, इधर से 2 पे आता है, कम से कम इसमें आना चाहिए, तो उस साइड से नंबरिंग करना है। तो आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू गिव द नंबर टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। जो अपन लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड रूल क्या बोलता है कि उसको नंबर देना है कार्बन को, तो कैसे देंगे, जिस साइड से आप नंबरिंग करेंगे उस साइड से विच गिव द स्मॉलर नंबर टू द कार्बन एटम। तो देखो अभी इसमें करेक्ट वे बताया है और रॉन्ग। तो पहले इसमें कैसा है, 2 पे आता है सब्स्टिट्यूएंट, और दूसरे इसमें किस में आता है, 4 नंबर कार्बन पे। सो दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द रॉन्ग। तो इस टाइप से नंबरिंग करना है। वन मोर एग्जांपल इज गिवन हियर। इसमें दूसरा एक एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे एक कंपाउंड है, इसका नाम है 2 मिथिल ब्यूटेन। तो यहाँ पे नंबरिंग कर सके 1 2 3 4, तो ये मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है, ये चेन है 4 कार्बन की, कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मिथिल है, ये नंबर 2 पे मिथिल, इसलिए 2 मिथिल ब्यूटेन। ये करेक्ट वे है, स्ट्रक्चर 1 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 पे आता है, 1 2 पे आता है मिथिल, इस वही कंपाउंड है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पे आता है, तो 3 नहीं लेंगे अपन, 2 पे आता है, जो कम आता है वो वाला सिलेक्ट करेंगे, दैट इज करेक्ट। तो आपको समझ में आया होगा हाउ टू नंबर द कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन। ये 2 रूल हो गए। पहला रूल क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। सेकंड क्या है, नंबर द कार्बन एटम, कौन से साइड से करना, ये आपको समझ में आ गया। तीसरा रूल है रूल फॉर आईपीसी नोमेनक्लेचर। तो तीसरा रूल क्या है, इफ द सेम प्रीफिक्स ऑकर मोर देन वंस, अगर प्रीफिक्स सेम प्रीफिक्स है, वो एक से ज्यादा है, तो सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, तो अगर उसको फिर 2 अगर होंगे तो डाई यूज करना है, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एक्सेट्रा आर अटैच टू द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा उसके आगे लगाना है। जैसा 2 मिथिल अगर है, सेम है मिथिल मिथिल, तो डाई मिथिल, डाई लगाना है, डाई मिथिल। 3 है तो ट्राई मिथिल, 4 है टेट्रा मिथिल, ऐसा यूज करना है। दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट सेम है, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, लेकिन उसको अपने को डाई ट्राई टेट्रा ये प्रीफिक्स यूज करना है to the substituent, name of the substituent. It may be noted that position of the prefix are indicated separately and numerals representing their positions are separated by commas. The name of some compounds are इसका एग्जांपल देखेंगे। ये आपको थर्ड रूल समझ में आया होगा। थर्ड रूल में क्या करना है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको उसके आगे क्या लगाना है, डाई। 3 हो गए तो ट्राई, तो ड्राई डाई ट्राई टेट्रा, ये सब्स्टिट्यूएंट के आगे लगाना है। तो 2 मिथिल अगर है कंपाउंड में तो डाइमिथिल, 3 है तो ट्राइमिथिल, 4 है तो टेट्रामिथिल। इस टाइप से ये कंपाउंड का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और फिर नंबर तो दिया है अपन ने, और सब्स्टिट्यूएंट देखना है कितने हैं, उसके ऊपर से फिर अपने को ये प्रीफिक्स वी हैव टू, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सेम है तो उसको डाई लगाना है, वी हैव टू यूज डाई ट्राई टेट्रा। तो ये डाई ट्राई टेट्रा we have to attach to the name of the substituent. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये सब पहला एग्जाम्पल है, इसको नंबर दिया अभी, लॉन्ग चेन है 3 कार्बन की, 1 2 3। नंबरिंग इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, एक ही है, 2 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3। तो कार्बन नंबर 2 पे ये मिथिल है और ये भी मिथिल है, 2 है मिथिल, तो इसलिए सेम ही है, तो इसलिए डाई मिथिल लिखना है पहले, देखो उसका पोजीशन भी लिखना है, 2 2 डाई मिथिल, तो डाई यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। 3 से क्या करना है, डाई लगाना है, और उसका पोजीशन भी लिखना है। ये 2 मिथिल है, कौन से कार्बन पर है, दोनों भी कार्बन नंबर 2 पर है, इसलिए 2 बार लिखना है, 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन। और सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें भी इसको नंबर दिया है 1 2 3 4 5। 3 ही मिथिल है, 3 मिथिल है, ए भी मिथिल है, ए भी मिथिल है, ए भी मिथिल है, तो ये 2 2 और 4 पे भी है, तो इसलिए 3 बार लिखना पड़ेगा पोजीशन, 2 2 4 ट्राई मिथिल पेंटेन, 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, ये 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, और 2 2 4 3 है, 2 कार्बन पे 2 है और 4 पे 1 है, ट्राई मिथिल पेंटेन। इसका वैसा ही तो देखो, ए इथिल है, ए भी इथिल है, टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेन है,
अभी ये 2 इथिल लिखना है, कार्बन नंबर 3 पे है, तो डाई इथिल 3 लिखना पहले, 3 डाई इथिल पेंटेन, इस स्टेप से ये रूल नंबर 3 है। तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है सब्स्टिट्यूएंट के आगे प्रीफिक्स करके। और लास्ट रूल है रूल नंबर 4, इफ 2 or more different prefixes are present। अभी प्रीफिक्स जो होता है, सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 या 2 से ज्यादा है और डिफरेंट है। अभी सब्स्टिट्यूएंट सेम थे तो अपन ने थर्ड रूल में देखा है, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है देन वी हैव टू प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, देन दे आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 है, 3 है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको अल्फाबेटिकल लिखना है। जैसा इथिल भी है, मिथिल है, इथिल पहले आता है अल्फाबेटिकल में, ई पहले, तो इथिल पहले लिखना है, बाद में मिथिल। अभी इसमें एग्जांपल देखे लेते हैं। इसमें एग्जांपल दिए 3, ये देखो एक कंपाउंड है, इसका नंबर दिया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब पेंटेन। अभी इसमें देखना ये इथिल है, ये मिथिल है, ये मिथिल है, तो मिथिल बाद में लिखेंगे, पहले इथिल, तो 3 कार्बन पे इथिल, तो 3 इथिल, और 2 और 3 पे क्या है मिथिल, तो डाइमिथिल, 2 3 डाइमिथिल पेंटेन, इस टाइप से लिखना है। ये दूसरा एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, हेक्सेन। 3 पे क्या है इथिल, ये इथिल है, 3 पे इथिल, 2 2 ये मिथिल, और यहाँ पे भी है 2 2, और ये 5 पे तो ट्राई मिथिल हेक्सेन। इसमें भी वैसे ही है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ऐसा एक किया तो ऐसा आता है, देखो 6 कार्बन। अभी 3 पे क्या है इथिल, तो 3 इथिल लिखा, देखो 3 इथिल, मिथिल 3 पे है, 2 कार्बन पे 2 है और 3 पे है, तो 2 2 3 ट्राई मिथिल हेक्सेन, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, तो 3 इथिल 2 2 3 ट्राई मिथिल हेक्सेन। तो इस टाइप से ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स आर देयर ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन, एंड इस टाइप से उसका ये 4 रूल्स हैं, एंड इन दिस केस वी हैव सीन 4 डिफरेंट रूल। तो इसमें इंपॉर्टेंट है जो 4 रूल्स है, रूल नंबर 1 2 3 एंड 4, टू राइट द नेम ऑफ द ब्रांच चेन अल्केन्स। ब्रांच चेन अल्केन का आईपीसी सिस्टम से ये 4 रूल ध्यान में रखने का है। एंड 4 रूल्स आर, रूल नंबर 1 इज द सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। और सेकंड रूल क्या है, जो कार्बन एटम अपन लॉन्ग चेन सिलेक्ट किया है उसको नंबर देना है 1 2 3 4, लेकिन उस एंड से, जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट को कम इसमें आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर पे आएगा। और तीसरा क्या है, इफ सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे कार्बन चेन में वो 2 सेम अगर है या 3 है सेम है, तो उसको डाई ट्राई टेट्रा ये अपने को आगे लगाना है सब्स्टिट्यूएंट के आगे। जैसा 2 है मिथिल तो डाइमिथिल, ट्राइमिथिल, टेट्रामिथिल, ऐसा ये डाई ट्राई टेट्रा ये यूज करना है सब्स्टिट्यूएंट के नाम के आगे। और चौथा रूल क्या है, इफ द 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, 2 or more different substituents are present, then write the name of the substituent according to the alphabetical order। तो ये 4 important rules है, we have to follow, we can write the name of the compound, organic compound। तो remember all the 4 rules। So today we have discussed what is alkane, what are the types of alkane, and then IUPAC nomenclature of the branch chain alkane। स्ट्रेट चेन में तो कुछ नहीं है, कॉमन नेम है, IUPAC नेम सेम है, 10 अल्केन्स है, वो स्ट्रेट चेन अपन ने देखा ही है, लेकिन important 4 rules are there for to write the name of the organic compound in case of the branch chain alkane। So today we stop here. Remaining part, what are the types of carbon, then also different types of nomenclature, that is the preparation of alkane, all these things we will discuss in the next part। So today we have discussed what is alkane, types of alkane, and nomenclature, IUPAC nomenclature of the branch chain alkane।